وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ہیلو ہلو، ہاں جی عطا اللہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ میں جمشید بات کر رہا ہوں۔ آپ اس دن بات کیے لیکن دوبارہ فون ہی نہیں اٹھائے آپ۔ یہ آپ نے 1 بجے کیا تھا، اس وقت میں نے کریم کیا ہوا تھا۔ کہاں پہ؟ میں نے آرام کرتا تھا۔ اچھا 1 بجے اچھا فون آیا تھا، میں نے پھر اچھا۔ دیکھا۔ نہیں تو اذان کے ٹھیک وقت ہے، خیر اٹھا کوئی دی۔ بات نہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن خیر بعد میں تو ریپلائی آپ کو دینا چاہیے تھا نا۔ جی پھر ابھی کیا ہے، ہمارے وہ کھیتی کا مسئلہ ہے اچھا اچھا۔ حضرت، تو ابھی وہ کھیت وغیرہ ابھی بھی کھاد ڈالنے ہے، وہ گوبر وغیرہ تو ابھی نہیں، بڑھا رہا میں یہ ہے۔ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو غالب دیوبندی کے بارے میں جو بات کر رہے تھے کہ وہ معافی ہاں مانگا ہاں، ہے، کیا کون سے چینل سے مانگا ہے معافی؟ وہ تحفظ اسلام کے اوپر اس نے دیا تھا معافی نہیں مانگا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ میں نے کوئی ایسی یعنی بات نہیں کہی ہے۔ اس نے ایسا کہا تھا، اسی کے اوپر میں نے کہا تھا آپ کے اوپر۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کوئی ایسا بات نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے ہمارے چینل سے آڈیو سنا ہوگا تو اس میں سنا ہوگا نا کیا کہا اس نے؟ ہاں، اس نے کہا، اس کے اوپر بھی میں نے فون کیا تھا۔ اچھا میں نے کہا آپس میں اختلاف والی بات آپ مت کرو، اپنے جو جتنا بھی کھولے گا اپنے بڑوں کا ہی پورا وہ کھلتا جائے گا، برابر؟ تو کہاں سے تعلق رکھتا ہے، کون سے مسلک سے اپنے بڑوں کو، اور کہا جاتا ہے کہ جو اپنے بڑوں کے اعتبار سے جو ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن وہ اس کے ساتھ جن کے ساتھ منسلک رہتا ہے، جیسے کہ آپ کا تعلق اعلیٰ حضرت سے ہے، تو وہی کہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، نہیں اسے اپنے بڑوں کے وہ کھولتا رہے گا۔ میں نے کہا آپ کو اگر پورا وہ علم نہیں ہے تو آپ بالکل ایسی بات اور مناظرہ نہ کریں۔ کل پرسوں بھی بات جی ہوئی ہے غالب جی جی دیوبندی جی سے، تو پھر وہی بات بول رہے ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کے عالم میں سے جو کوئی بھی بڑے بڑے عالم ہے کسی نے اعلیٰ حضرت کو کافر مانا ہے تو آپ بتائیے، اس کا دلیل دیجیے۔ نہیں تو وہ مطلب دلیل دیتے بھی نہیں ہے، بولتے کہ میری تحقیق کے بنیاد پہ، میری تحقیق کے آپ کی تحقیق مطلب ابھی ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو آیا ہے جو عالم وہ اس کا تحقیق نہیں تھا۔ ارے میں نے اس کو یہ بھی بولا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے وہ خانقاہ کے اندر ایک آدمی نے صرف احمد رضا خان کہا تھا، تو حضرت نے فوراً اس کو ٹوکا اور اس کو کہا کہ وہ بھی عالم ہے اور فاضل ہے، مولانا یعنی احمد رضا کا ہو۔ انہوں نے اسی بات کے اوپر کبھی کوئی بزرگ نے وہ کہا نہیں ہے، اور آپس کا معاملہ تھا، اور ایک غالب میں نے اسی کو وہی کہا تھا۔ تو یہ معاملہ ایسا بڑھتے جا رہا ہے، سمجھ گئے؟ یہ جو جی ہے نا، جی جی یہ جو اس معاملے کو لے کر، کافر کا معاملہ لے کر بڑھتے جا رہا ہے، آپ کے بڑے بڑے عالم سے بھی بات ہو رہی ہے، سمجھ گئے؟ تو وہاں پہ یہ بولا کہ نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ غالب دیوبندی بات نہیں کر رہا ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ بار بار یہی بات بولتا ہے، تو اس کا آڈیو ایک اور بات ہوا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس طرح کا مطلب بات کرتا ہے اور آپ کے عالم لوگ کچھ اور بات کرتا ہے، تو یہ مطلب صحیح نہیں ہے نا، یہ تو ایک منافق جیسا چال ہو گیا نا۔ ہاں وہی تو، اسی کو پرسوں ہی فون کیا تھا، اس کا دیکھا تو اس کے بعد، اور آج پھر سے انشاءاللہ اس کو پھر سے میں بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ۔ ابھی دوپہر میں یا شام کو میں کسی وقت فارغ ہوتا ہوں تو میں اس سے بات کرتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ آپ بات کیجئے، خیر کوئی بات ٹھیک ہے، نہیں، لیکن اگر آپ کے بڑے عالم ہیں، اگر آپ کی پہچان کی ہے، سمجھ گئے، تو ان سے ان کو بات کراؤ، سمجھ گئے؟ ہاں بالکل، میں اس کا وہ کیونکہ آپ بات کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ جی کون بھائی؟ گجرات سے بول رہا ہوں۔ اچھا، گجرات سے بول رہے ہیں؟ جی کس کا نام تھا؟ اچھا، وہ عطا اللہ صاحب بول رہے ہیں کیا؟ ہاں۔ اچھا،
जी और क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत है। अच्छा, तो अताउल्लाह साहब आप आलिम हैं क्या? जी आप आलिम हैं? आलिम? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। मुफ्ती हैं या मौलवी? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मौलवी अच्छा, मौलवी हैं। हाफिज हूँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए बड़ी अच्छी बात है। वो जमशेद भाई साहब की शायद कुछ बात हुई थी। जी जमशेद साहब से बात हुई थी, सुबह में हाँ, बात हुई थी 9 बजे से। आज? जी आज बात हुई थी। अच्छा, आज भी बात हुई है? जी 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 जी। आप अच्छा। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं नूर हसन बोल रहा हूँ, जो गालिब देवबंदी साहब से मेरी बातचीत हुई थी। क्या? वही मतलब अकीदे के ताल्लुक से बात हुई थी, शायद आपने गुफ्तगू भी सुनी है। जी 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 जी, तो गालिब देवबंदी साहब जो हैं वो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कहते हैं माज़अल्लाह कि वो काफिर हैं, और उनके कुफ्र में जो शक करेगा वो भी काफिर है। जी। लेकिन उनका जाती मामला है हजरत। हेलो। हाँ हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि उनका वो जाती मामला है। मैंने उनसे पूछा कि हजरत ये बताएं कि आप ही कह रहे हैं या आपकी जमात के और बुजुर्ग भी कह रहे हैं, आपके उलमा भी कहते हैं? हाँ, उसके अंदर वो जो आप वो क्लिप सुना रहे हो, उसके अंदर भी कह रहे हो कि आपके बड़े बड़े हजरतों ने उनको यानी आलिम माना है, किसी ने काफी ने कहा, उन्होंने कहा कोई कहे नहीं गए, लेकिन मैं कहता हूँ उन्होंने खुद ने इकरार किया है तो इससे उनका जाती मसला है। इसके पूरे मसलब को मैंने वही कहा था जुनेद भाई को। जी जी हेलो। जी जी, तो उन्होंने तो अच्छा, कहीं चल रहे हैं क्या? नहीं, वो पानी चालू है, अभी वो बारिश नहीं हुई है, इसलिए मक्का वगैरह बोया है, तो अभी बिजली चालू है तो खेत में हैं क्या? हेलो? हाँ हाँ, वो क्या है जिसको दिया था ना, वो हमारे वहाँ जिसको चौथे भाग में देते हैं आदिवासी को, जी, वो आया नहीं है, जिसकी वजह से अभी मूंगफली और मक्का बोया हुआ है। अच्छा बारिश की न होने की वजह से थोड़ा थोड़ा पानी निकाल रहा हूँ। अच्छा वैसे अच्छा मैं तो पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी वो लॉकडाउन की वजह से घर पर ही हूँ। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को? जी अच्छा अच्छा, हिफ्ज वालों को या मौलवियत वालों को? नहीं, हिफ्ज वालों को भी पढ़ाता हूँ और आलिमियत का कोर्स भी कराता हूँ। अच्छा अच्छा, आलमियत का भी कोर्स कराते हैं? जी अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी उनसे यही पूछ रहा था, मुझे भी यही लगा कि ये उनका अपना जाती मामला है। जी जी। मैंने हजरत आप चाहे कुछ भी ताल्लुक रख रहे हो, लेकिन मैंने भी 7 साल मैंने वहाँ पढ़ा है, जोधपुर के अंदर इस्हाकिया मदरसा है जी, जोधपुर राजस्थान। अच्छा राजस्थान जोधपुर मदरसा है, इस्हाकिया मदरसा है। उसकी वो हॉस्टल चल रही थी, जी, तो मौलाना अकबर साहब शेर राजस्थान जिनको बोलते हैं, उनके सरपरस्ती में भी मैंने स्कूल भी पढ़ाया, वो गवर्नमेंट थ्रू पढ़ाया। तो मैंने उनको हर वक्त मैंने पूरे वो जो मसलक के एतबार से जो थी ना, मुझे सब कुछ बताया कि आपस के अंदर बुजुर्गों का कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो जो ना अकल वाले होते हैं वही इख्तिलाफ करते हैं, जैसे कि गालिब वगैरह है। हाँ तो हाँ मैंने हाँ, उनको वही बोला था। मैंने तो गालिब को ये भी कहा था, जनाब आप देवबंदियों के नाम पे जो है वो जी गाली जी हो। आप गालिब नहीं, जी। देवबंदियों के नाम पे गाली हो, गालिब नहीं हो। अच्छा मैंने अच्छा। खुद कहा था, मैंने कहा आप इतने बड़े बड़े उलमा को काफिर साबित कर रहे हो। फिर मैंने हाँ उनसे ये भी कहा, जनाब ये बताइए कि आप आज तहकीक कर रहे हैं, क्या थानवी जी को तहकीक नहीं थी? बोले नहीं थी। मैंने कहा आपने थानवी जी को कम इल्म बता दिया, जाहिल साबित कर दिया। फिर मैंने कहा जी जी। जनाब थानवी जी को किसी ने कहा था कि आला हजरत का विसाल हो गया है, तो वो रोने लगे, दुआ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो आला हजरत तो आपको काफिर कहते थे। तो बोले वो काफिर कहते थे मगर वो आशिक रसूल थे, वो आशिक रसूल थे। और ये भी कहा है कि हमारे ऊपर जो कुफ्र का फतवा लगाया है ये उनका इश्क रसूल है, और इनकी निजात हो सकता है कि हमारे ऊपर ये उलमाए देवबंद पर जो कुफ्र का फतवा लगाया है यही जरिया निजात बन जाए। ये भी लिखा है, ये उन्हीं की किताब से साबित है। अच्छा, तो जो मदरसा बता रहे हैं हजरत, हेलो,
अभी ये देवबंदी मसलक के मौलाना है, मौलाना मंजूर मियांगल अच्छा जी, वो पाकिस्तान के है। अच्छा तो उन्होंने भी आला हजरत के बारे में बोला था कि वो बहुत बड़े आशिक रसूल थे, उनका इश्तियाक यानी बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से यानी बहुत से उलमाए किराम ने कहा है। फिर अपने को उसके बारे में चिम गोइया, अब वो चले गए, अब अल्लाह के वहाँ मसला है, तो उसके बारे में किसी के बारे में ये कहना मैंने वही कहा था उनको, गालिब भाई को बात की थी जी तो मैंने कहा ये किसी को कहना, अब जो चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे उनको, लेकिन वो पीछे कीचड़ उछालना और उसके पीछे कहते हैं ना कि आगे वालों की बुराई बयान मत करो, जिसके अंदर भी आता है उनके यानी अच्छा ही बयान करो। कोई भी मैंने कहा कि कोई भी मसलक वाला हो, लेकिन वो उनकी जो जाती मसला है, कोई उलमाए देवबंद आज तक किसी ने नहीं कहा है कि आला हजरत काफिर थे, कि मुनाफिक थे, कि वो थे नहीं, सब आशिक रसूल ही कहते हैं। सबने तो आशिक एकदम हाँ, इश्क का गलबा अल्लाह के नबी के बारे में यानी बहुत ज्यादा होने की वजह से उन्होंने वो उसके एतबार से तो किसी ने ये कह दिया, किसी ने ये कह दिया, लेकिन ये सब उनका जाती मसला है। मैं किसी के बारे में चेमी गोइया नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जी अभी जी वो बड़े उस वक्त खैरुल कुरून का जमाना था, बराबर जितना जमाना अल्लाह के नबी से उनका जमाना बहुत करीब था, और उनका वो खशियत इलाही भी इतना होगा और इश्क भी इतना होगा जितनी जितनी दूरी होती होगी। और ये अभी जो व्हाट्सएप का उस जमाने में ऐसा मसला था ही नहीं। जी और आजकल तो जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी चैनलों में एक को दूसरे को वो सब कुछ कहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो उनको ही मैंने बात की थी, कमेंट में कोई गलत नहीं कहा था। जी और मैंने जमशेद भाई को ये कहा था कि इत्तेफाक आजकल इख्तिलाफ की वजह से पूरे इंडिया के अंदर मुसलमानों की जो हालत हो रही है, इस एतबार से तो उन्होंने कहा गालिब भाई का चैनल हो देखो, मैंने कहा देखा, उनको भी मैंने बात की है, चाहे जी किसी भी मसलब का वाला हो। तो क्या लेकिन बोला ये गालिब भाई ने? नहीं, उन्होंने यही कहा है, मैंने कहा आपका जाती मसला है, आपकी वजह से पूरे यानी देवबंदियत के ऊपर ये जो पड़ रहा है, आपको अगर पूरा इल्म नहीं है तो आप रहने दो, बड़े दूसरे मौलाना है उनके साथ मुनाजरा करने दो। आपके पास अगर पूरी किताबों की पूरी फहरिस्त हो, पूरा आपके पास इल्म हो, तब आप मुनाजरा कर सकते हो। ऐसे ही मुझे भी आप कह दो कि मुनाजरा करो, मैंने बिल्कुल इनकार कर दूंगा, क्योंकि मेरे इसके एतबार से जो पूरे 24 घंटे में कौल अल्लाह और कौल रसूल करेगा, उसको भी पूरी किताबों का मुताला होगा और वो मुनाजरे करेगा, और ऐसे ही खेत में जाकर थोड़ी करेगा कोई मुनाजरा। जी जी सही बात है। तो हजरत जो यही आप कह रहा हूं। मदरसे में पढ़ाते थे, जिस जी। मदरसे का आप नाम ले रहे थे, वो उलमाए देवबंद का मदरसा है या फिर किसी और जमात से ताल्लुक रखता है वो मदरसा? नहीं, वो जिसको मैंने पढ़ाया था वो जोधपुर में पढ़ाया था मैंने, ये 2003 से 2010 तक। अच्छा, तो वो देवबंदियों का मदरसा था कि अहले सुन्नत बरेलवियों का? नहीं, वो था मदरसा, वो राजस्थान वक्फ बोर्ड की तरफ से था, वो यतीम खाना था। तो अच्छा, उस एतबार से दूसरे भी बच्चे आते थे, और इस्हाक के मदरसा और जो सोचती के थे, आप मतलब कहाँ वो से सब लोगों के था, गरीब गुरबा के लोग, मतलब सब लोगों के लिए था, कोई भी? मेरे उसी वक्त मुझे मेरे थोड़ी गालिब थी, देवबंदियत गालिब थी, और हर एक एतबार से इस एतबार से पढ़ा। लेकिन मैंने देखा कि हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से अल्लाह का और अल्लाह के नबी का इश्क अपने एतबार से इजहार कर रहा है। फिर अपने किसी के ऊपर कुफ्र का, किसी के ऊपर ये करने का कोई है ही नहीं। हाँ, मगर उन्होंने ये कहा कि आला हजरत के कुफ्र में, और बड़े गलत और खतरनाक अल्फाजों में बोला कि उनके कुफ्र में कोई शक करे वो भी काफिर है। तो मैंने कहा जनाब थानवी जी ने आला हजरत को मुसलमान कहा है, आशिक रसूल कहा है। किसी साहब ने आला हजरत को कह दिया कि अहमद रजा, खाली कह दिया था कि अहमद रजा। तो आला हजरत ने डांटा कि तुम उनको अहमद रजा कह रहे हो, क्या मौलाना अहमद रजा साहब नहीं कह सकते? हाँ, क्या वो मैंने सुबह में जमशेद भाई की क्लिप अगर हो ना, मैंने यही बात कही थी कि अहमद रजा कहा, तो हजरत ने फौरन डांटा और कहा कि मौलाना अहमद रजा साहब कहो। उन्होंने फौरन मैंने यही बात कही थी। अच्छा, और ये आपने भी कहा है? आजकल जो जी मैंने जमशेद भाई से जो बात की है मैं सुबह में 9 बजे, अच्छा, उसी वक्त मैंने यही कहा था, मैंने कि जितने भी उलमाए किराम थे उन्होंने यही कहा था कि भाई किसी के बारे में और कोई गुस्ताखाना अल्फाज बोलता था तो फौरन उसको टोक देती है उसी वक्त। जी जी जी। तो बताइए, जिनका अदब थानवी जी खुद इतना कर रहे हो, तो थानवी जी के जो चेले हैं, जो अपने आप को थानवी जी का जो है समझ लीजिए वकील मान रहे हैं अपने आप को,
जी जी जी, तो ये तो थानवी जी की मुखालफत पे आ गए हैं। वही बात कह रहे हैं, उनका उनका जाती मसला है। और जी, यही जी। आजकल कहते भी है, कोई भी मसलक वाला हो वही कहता है कि चाहे ये लोग के वो है बराबर, लेकिन उनके बारे में ये यानी गैर लोग है, अपने बिरादरान वतन है जिसको हिंदू लोग कहते हैं, इनके दिलों के अंदर ईमान नहीं है। लेकिन उनकी देव देवताओं के बारे में मत कहो, नहीं तो हमारे बड़ों का वो तौहीन करेंगे, बराबर। जी। वही कह रहे हैं आजकल कि किसी के बारे में जो जिसके अकीदा है उसके एतबार से उसकी पोल खोलने की नहीं, इसकी वजह से अगर हम उनके बारे में कहेंगे तो माअज़ल्लाह हमारे नबी के बारे शान में गुस्ताखी करेंगे और इसी एतबार से अल्लाह के बारे में बुरा भला कहेंगे। लेकिन उनको भी कहें यानी असबाब के तौर पर उनको हिकमत के जरिए से उनको इस्लाम की दावत दी जाए, लेकिन इस एतबार से नहीं कहा जाता है ये दारुल हुकूमत वो क्या है, दारुल हर्ब है नहीं ये इंडिया में। इसलिए मैं वो गालिब भाई को यही कह रहा हूँ कि भाई इस तरीके से बात करने से अच्छा है कि आप अपने रुजू कर ले कि मैंने इस तरीके से कहा है गलत है, तो मैं उनका फोन नंबर लेकर मैं उनसे भी बात करता हूँ इंशाअल्लाह। जी, गालिब भाई से ना? जी इंशाअल्लाह। जी, जी, बिल्कुल गालिब भाई से आप कहिए कि आपने जो ऐसा कहा है, हमारे कौन सा आलिम ने कहा है? हमारे आलिमों ने तो आला हजरत को मुसलमान कहा है, आशिक रसूल कहा है, और किसी ने आला हजरत को अहमद रजा कह दिया था तो उनको थानवी जी ने डांटा कि तुम उनको मौलाना अहमद रजा साहब नहीं कह सकते। जी 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 जी, उनको समझ लीजिए तहकीक नहीं है, इल्म नहीं है, और कह जो रहे थे अभी कि मैं दरस निजामी अभी पढ़ा रहा हूँ। जी जी, अभी हरम शरीफ के अंदर जो है ना मौलाना हिजाज मक्की, हाँ, वो मक्की साहब बोलते हैं हिजाज मक्की, उन्होंने भी ये आप देखो 1 महीने की क्लिप के अंदर भी आला हजरत के बारे में उन्होंने कहा था कि बहुत बड़े आलिम थे और आशिक रसूल थे। उनके अच्छा। बारे में भी उन्होंने भी कहा है। तो तो कोई भी आज तक किसी ने कहा नहीं है। वो आप किस वो मसलक से क्लिप ताल्लुक सुन रखते कर- हैं? वो देवबंदी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कोई भी इसने कहा नहीं है। लेकिन आप ऐसे अरे गरी मथू आगे खड़े हो जाते हैं, किसी के बारे में ये कुफ्र का फतवा देना आसान थोड़ी है। सही बात है, मैंने उनको बताया भी है, उनके ताल्लुक से मैंने एक क्लिप भी बनाया है, जी जी जी, मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और मैंने इनके घर से हवाले दिए हैं। मैंने कहा थानवी जी ने ये कहा है, फला ने ये कहा है, फला ने ये कहा है। हाँ, तो मैंने कहा इनको गैरत शर्म नाम की कोई चीज है नहीं। बीच में भी मेरे 2-3 मरतबा रद्द वहाबियत जो आपकी आती थी चैनल, इसके अंदर वो लखनऊ से थे, कौन थे हजरत राहिल भाई हैं, राहिल भाई। हाँ राहिल भाई जी, राहिल भाई से 2-3 मरतबा मेरी बात हुई और उनका वो मसला साफ किया। उन्होंने थोड़ी कमेंट में ऐसे लिखते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हजरत, मैंने कहा जो बीच वाले जो होते हैं ना, जो अनसमझ होते हैं, जी, वो कमेंट में ऐसा गलत गलत बोलते हैं जिससे हमारे उलमाओं की नाकदरी करते हैं। और अभी उनका रद्द वहाबियत तो बंद हो गया है, अब बोलता भारत कर दिया उसके ऊपर। मैं सब चैनल को देखता हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जी, अच्छी चीजें होती हैं मैं ले लेता हूँ, उसके बाद उसको फॉलो भी मैं करता हूँ। चाहे किसी वो आपके हजरत जो है ना वो मौलाना मुस्तफाई, वहाँ साकिब मुस्तफाई है ना, अच्छा, पीरजादा है, पाकिस्तान के मौलाना साकिब रजा मुस्तफाई। जी, 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 हाँ उनकी बातें बहुत अच्छी अच्छी होती है, उनकी बहुत साथी के अंदर भी फॉलो करता हूँ और तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी उनसे बातचीत होती है? नहीं बात नहीं होती है, उनकी कोई बात है ना, बाकायदा उनकी अच्छा। जो चैनल है उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, जो भी अच्छा। आता है, और वो फॉलो भी करता हूँ मैं किसी के। और बीच के एतबार से जो किसी भी मसले के एतबार से बीच में मैंने क्लिप बनाई थी एक, अच्छा, तो जिसके अंदर अभी 2020 के अंदर जो इंतकाल फरमा गए हैं, तो उसके अंदर तमाम मसलक के जो जितने भी उलमाए किराम दुनिया से चले गए और हदीस की अल्लाह के नबी की इल्म उठ जाएगा, तो इल्म उठ जाएगा यानी आलिम लोग उठ जाएंगे। उसके अंदर तमाम मसलक के उलमाए किराम उसके अंदर है। इस एतबार से हर एक कोई भी माशाल्लाह रास्ता है जिससे बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं आप। जी मैंने कहा माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं आप, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। नहीं हमारा तो हमारे पास में ही कासिमपुरा गांव है, सब मौलाना मुस्तफ़ा है, सब किबला मौलाना मोहम्मद साहब है, उनसे भी हमारे के बातचीत हमारा यानी ताल्लुक भी वही है, मामू फूफी का पुराना ताल्लुक है, तो कोई बात इसके एतबार से होती ही नहीं। अच्छा, असल में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ताल्लुक भी है।
میں بھی خود جو ہے پہلے دیوبندیوں میں ہی چلا گیا تھا. میرے والدین سب جو ہے پہلے بھی سنی حنفی بریلوی تھے. آج بھی الحمدللہ سنی حنفی بریلوی ہیں, اور الحمدللہ مرتے دم تک اسی پر قائم و دائم رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت جس کے دل میں ہے وہی مومن ہے, مسلمان ہے. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے یا ان کی شان پاک میں جو ہے تنقید کرتا ہے, وہ مومن نہیں, پھر وہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وہ تو بالکل صحیح. میں خود 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں حضرت, اور میرے نکلنے کی وجہ یہ ہوئی کہ دیوبندی حضرات انبیاء اکرام اولیاء اکرام کی شان پاک کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے علم پاک کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں انبیاء اکرام اولیاء اکرام کی شان میں. مگر جب بات اپنے گھر کے بزرگوں کی آتی ہے تو بڑی دل کھول کے تعریف کرتے ہیں. یہ میرے نکلنے کی وجہ ہوئی تھی ان لوگوں سے. تو اس طرح کی کوئی گفتگو جو ہے بہت ساری میری ہیں اور پڑھی ہوئی بھی ہیں جو میں نے بتایا ہے. تو اصل میں بات کیا تھی, غالب صاحب نے مولانا مشتاق صاحب سے کہا کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ مشرک ہیں, ان کے عقائد مشرکانہ تھے. اب انہوں نے جو ان کو لائیو پہ لیا کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے ثابت کیجئے. اب وہ ثابت نہیں کر پا رہے تھے. اب وہاں دانتوں کو پیس رہے تھے, وہ دانت چاپ رہے تھے. آپ دیکھیں گے نا تو دانت چاپتے ہوئے ملیں گے آپ. یہ مولانا غالب صاحب جواب نہیں بن پڑ رہا تھا, صرف دانت چاپ رہے تھے یہ. تو انہوں نے مدد کے تعلق سے کچھ اعتراض کیا. مولانا احسان صاحب قبلہ انہوں نے قرآن پاک سے ثابت کیا کہ اللہ کے فرشتے بھی جو ہے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے. تو کہہ رہے تھے کیا فرشتہ اشرف المخلوقات کی مدد کرے گا اس طرح سے. تو انہوں نے جواب بھی دیا کہ ہاں. بہرحال بہت ساری چیزیں تھیں, مگر آواز گڑبڑا رہی ہے حضرت. آواز نہیں آواز آپ کی نہیں آ رہی, آواز گڑبڑا رہی ہے. ہاں شاید کسی چیز کی آواز ہو رہی ہے آپ کی طرف. جی وہ جی فرمائیں. میں نے کہا کہ ان کا ایک گھنٹے کے 10 منٹ کم 51 منٹ کی ان کی گفتگو تھی. پوری گفتگو میں نے سنی تھی. جی ہاں پوری وہ احسان بھائی کی بھی بات سنی تھی اور غالب کی بھی بات سنی تھی. جی دونوں کی بات سنی تھی. دونوں کی بات کے اندر بیچ میں وہ جو چینل چلا رہے تھے وہ حضرت بھی تھے. جی کیا نام, وہ بھی تھے, ان کی بھی بات سنی تھی. اب اس کے اعتبار سے میں نے پورا دیکھا, لیکن انہوں نے جیسے ہی اب وہ کیا ہوتا ہے, میں آپ اس کے اعتبار سے اگر میں بات نہ کرنے کی وجہ کیا ہے حضرت کہ بات کرتا ہوں اس کے اندر بہت سے لوگ اس کے ریکارڈنگ کر دیتے ہیں, پھر کہ دیکھو انہوں نے یہ کہا میں نے نہیں کہا. جب بھی اصل میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر فون میں ریکارڈ موجود ہے اور ہر فون کا ریکارڈ چالو رہتا ہے. آپ ریکارڈ کر رہے ہو؟ ہاں میرا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ ریکارڈ کر رہے ہیں؟ میرا ریکارڈ لگا ہوا ہی رہتا ہے. اس کے نہیں, اس کے اعتبار سے بھی کیا ہم دیکھو کہ دیوبند والے علماء نے غالب کے بارے میں کیا کہا. پھر یہ زیادہ تنقید کی والی بات کروں گا. ابھی آپ یہ کہیں گے کہ ان کے ہی علماء نے غالب کے بارے میں یہ کہا, اس اعتبار سے آپ چینل بنا کے اس کے اوپر ڈالیں گے تو زیادہ یہ محبت بڑھے گی, نہیں یہ تو دشمنی بڑھے گی. نہیں دشمنی نہیں بڑھے گی. جو آپ نے ان کی حقیقت ہی بیان کی ہے نا, جو حقیقت تھی. جی 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 ہاں آپ نے کہا کہ یہ علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے جو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا ہے. تو آپ نے تو سچ کہا ہے نا, اور ہم بھی ان کی ذاتی رائے مان رہے ہیں. جی اس کے اعتبار سے بھی اب دیکھو گے, آپ اس کے بعد ڈالیں گے. میں نے آج سے نہیں بلکہ قریباً 20 سال سے اس طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی کسی سے بات کرنا چاہتا ہے, پھر کہتا ہے کہ کون سے مدرسے میں پڑھا ہے, اس کا تو علم نہیں ہے, ان کا ذاتی مسئلہ ہے. پھر اس سے کمنٹ کرنے والے غلط نہ بولنے والے نہ بولتے. اس سے بہتر ہے کہ اپنے چھپ کر رہنا بہتر ہے. کسی کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. ایسے عالم کو دیکھیے جو دین کی بات سچائی کے ساتھ نہ کہہ سکے, ایسے عالم کو گونگا شیطان کہا ہے.
वो तो बात ठीक है हजरत। हाँ, तो सच्चाई की जो बात है हजरत, दिल खोल के बोलो और सीना चौड़ा करके बोलो, चाहे अपना हो चाहे पराया। वही बात कह रहा हूँ, मुनाजरे के लिए तो बहुत बड़े बड़े आपके अंदर भी मौलाना फारूक रजवी है, ठीक है। हेलो जी फरमाएं। नागपुर देखिए, से मौलाना फारूक रजवी साहब भी वो काम करते हैं जो उलमाए देवबंद का अकीदा है उसको दिखाते हैं, मुनाजिर नहीं है, ठीक है। हाँ, मुनाजिर नहीं है हम, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मुनाजिर हूँ, ठीक है, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं मुनाजिर हूँ। हाँ, ये जरूर कहा है कि जो अकीदा तुम हमारे लिए शिर्क साबित करते हो वही अकीदा हम तुम्हारे घर से दिखा रहे हैं, उन लोगों को भी आप मुशरिक कहोगे या नहीं कहोगे, ये दिखाते हैं वो। जिन चीजों पर हमारे ऊपर शिर्क का फतवा लगता है वही चीजें उलमाए देवबंद के घर से साबित हैं, मगर अपने घर के बुजुर्गों को काफिर मुशरिक नहीं कहते। ये सब कुछ हजरत आप बता रहे हो बराबर। जी अब जी जी उसके अंदर तुम आलिम हो, तुमको पता है, मैं आलिम हूँ, मुझे पता है, लेकिन अवाम कहाँ जाएगी? मैं कहता हूँ अवाम बेचारी तो नहीं, उनकी बात ये भी सच कह रहा है, देखो हमारा मसला जो है, हमारा तो कंफ्यूज हो जाएगी, अवाम कंफ्यूज हो जाएगी ना, अवाम किस राह पर चलेगी? मैं कहता हूँ अच्छा एक बात हजरत, हेलो जी, देखिए, अवाम को हमें क्या दिखाना है, मोहब्बत रसूल या अदावत रसूल, क्या सिखाना है? मोहब्बत सिखाना है ना, माशाअल्लाह। तो जिनकी किताबों में अदावत रसूल है जी, उसको आम करना चाहिए या जो मोहब्बत रसूल है उसको आम करना चाहिए? मोहब्बत रसूल को आम करना चाहिए। मोहब्बत रसूल को वो लोग शिर्क बता रहे हैं जो अदावत रसूल जो है बताने की कोशिश करते हैं, और अदावत रसूल का प्रचार करते हैं जो लोग मोहब्बत रसूल को शिर्क बताते हैं। नहीं, कोई नहीं बताया मोहब्बत रसूल को शिर्क। अब देखिए, हम लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से जो अकीदा रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को इल्म गैब अता किया है, वो इल्म गैब वाला मसला है जो ना हजरत, वो अकाइद के एतबार से है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरे तो वो गालिब देवबंद वाली बात थी, उसके एतबार से मैं खत्म करता हूँ बात को। अच्छा, मैं आगे वाली मसले वो मुनाजरे के अंदर नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जी, तो आप ऐलान कर दीजिए कि जितने इसमें के गालिब जैसे देवबंदियों के नाम पे गाली लोग हैं, देवबंदियों के नाम पे धप्पा हैं, तो ऐसे लोग जो है बात ना क्या करें। मैं उनसे रूबरू में फोन के जरिए मैं बात कर देता हूँ, आप क्लिप भी में इंशाल्लाह भेजूंगा। जी हाँ, उनसे बात करके और आप वो क्लिप मेरे पास भेज दीजिएगा। ठीक है हजरत। हाँ इंशाल्लाह। वो क्या कहते हैं, आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, रुजू करते हैं नहीं करते हैं, या जो उन्होंने गलती की है उसको अपनी गलती मानते हैं या नहीं मानते हैं। इस पे तो थानवी जी पे जो हर्फ आ रहा है, थानवी जी फंस रहे हैं इसमें। नहीं, कोई फंस नहीं रहा है हजरत, इसमें फंसने की वाली बात नहीं है। अब वो मसला नहीं है कि वो घर के अंदर पूरे माँ बाप का कहना मान के चले, कोई इसमें एक बच्चा बागी भी बन जाता है। हाँ, ठीक है। माँ बाप के ऊपर कोई दब्बा नहीं है, उसने उसका फरीज़ा अदा कर लिया। अब चाहे वो यानी वो आवारा घूमे या कुछ भी घूमे, लेकिन उसका जो फरीज़ा था वो अदा कर दिया। अब ये कहीं उसका वालिदैन खराब था नहीं था, इसके ऊपर वालिदैन के ऊपर वो थानवी साहब के ऊपर कोई वो दब्बा नहीं आए, उनका जाती मसला है। मैंने बार बार आपको कहा कि उनका जाती मसला है, और जो भी है अकीदे के एतबार से वो अगर वो खोल के बयान करे, और जो मैंने कहा है कि वो गलत डायरेक्ट किसी को कहना कि वो काफिर और मुशरिक ये तो सही नहीं है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर भी मुनाफिक को किसी ने, हज़रत उमर ने किसी ने काफिर नहीं कहा है, फिर अपना हम क्या है किसी को काफिर कहने के? भाई अल्लाह पाक ने काफिर कहा ना। हाँ, अल्लाह पाक ने काफिर को काफिर कहा, रसूल पाक ने काफिर को काफिर कहा, मुनाफिक कहा, कुरान पाक ने मुनाफिकीन को मुनाफिक कहा, काफिर उनको काफिर कहा। कुरान है ना, हम तो कुरान मान रहे हैं ना। जी। हमारा ईमान तो कुरान और हदीस पर है ना। बिल्कुल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत का मुनकिर जो है वो काफिर है, मुसलमान नहीं है, ठीक है ना। तो खैर ठीक है, आपकी बात बड़ी अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि
थानवी जी पे नहीं आएगा, मगर वो थानवी जी को भी फांस रहे हैं कि जो उनके इल्म में, जो उनके कुफ्र में जो शक करे। मगर थानवी जी ने तो शक ही नहीं बल्कि मुसलमान कहा है। शक की तो एक और दूसरी बात है कि काफिर हैं या नहीं है, ठीक है, शक तो ये हो गया, पता नहीं है या नहीं है, ये हो गया शक। मगर थानवी जी ने शक नहीं बल्कि कहा कि वो मोमिन है, आशिक रसूल हैं, यानी मुसलमान माना है। और वो कहते हैं कि उनके कुफ्र में जो शक करे वो काफिर है। तो किसी काफिर को मुसलमान मानना ये खुद एक कुफ्र है। बहरहाल आपने अच्छे तरीके से अपने समझा दिया कि थानवी जी पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। माँ बाप जो है औलाद को पालते हैं और फिर कुछ औलाद उसमें आवारा निकल जाती है, तो गालिब साहब भी उन आवारा लोगों में से ही है। नहीं, मैं उनको वो किस बात के ऊपर उन्होंने कहा है, उनके पास कोई दलील है कि नहीं, ऐसे ही वो करते हुए मैं उनसे बात करता हूँ, इंशाल्लाह वो क्लिप भेज दूंगा आपको। जी, कोई दलील ही नहीं है उनके पास। अगर दलील होती तो या तो मेरे सामने पेश करते कि क्या दलील है, या फिर जो है मौलाना हाफिज एहसान साहब क़िबला के सामने पेश करते कि ये दलील है, इस वजह से मैंने जो है उनको मुशरिक कहा है। और जिस चीज को वो शिर्क समझ रहे हैं, जिस चीज को वो शिर्क समझ रहे हैं, कुरान और हदीस से वो साबित है, कुरान और हदीस से, और वो इनके घर से, देवबंदियों के घर से भी साबित है। जी चलिए, खैर बहुत अच्छा जो है आपसे बात करके लगा, बहुत टाइम गुफ्तगू हुई आपसे, और आप वैसे भी काम में हैं, ठीक है? ठीक है, दुआ की दरख्वास्त है, ठीक है? जी, मेरा ये नंबर है, ठीक है, मेरा ही नंबर है, आप चाहें तो सेव कर लें। मैं भी आपके नंबर को सेव कर लूँ क्या? हाँ बिल्कुल कर लें। चलिए ठीक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बड़े सुकून से बात की, वरना इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं बात करने वाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे सलाम का जवाब सिर्फ सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल ने, कोई देवबंदी दुश्मन रसूल गद्दार रसूल मेरे सलाम का जवाब ना दे। मेरे प्यारे प्यारे सुन्नी भाइयों वफादार रसूलों, इस यूट्यूब चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको देवबंदियों का ओरिजिनल चेहरा देखना है, देवबंदियों की जो दोगली पॉलिसी है अगर आपको देखना है, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये जो घंटी है इसको भी दबा दें, ताकि आपके पास आने वाली हर वीडियो पहुंच जाए और देवबंदियों का बेनकाब चेहरा आप देख सकें। मैं देवबंदियों के दोनों रुख दिखाता हूं। एक तरफ तो इन देवबंदियों को अपने देवबंदी शैतानों से मोहब्बत, और दूसरी तरफ अल्लाह के महबूब बंदों से, अंबिया इकराम औलिया इकराम से नफरत। तो इस नाइंसाफी का दो रुख वाला चेहरा अगर आप देखना चाहते हैं तो नूर हसन रज़वी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये जो घंटी दिख रही है इसको ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए।